Hello students, welcome to JJ class of learning science. This is our part 2 of chapter number 9, force and laws of motion. In previous part we have discussed about what is force and effect of force, type of force, balanced and the unbalanced. Also we have discussed about first law of motion. Okay, in this part we are going to discuss about second law of motion, and to understand the second law of motion, this is very important part. In this part we are going to discuss about second law of motion, and to understand second law of motion you need to understand about momentum. About what? Momentum. Now what is momentum? Let's know. To understand momentum, take two cases. Take one case. In one case, we are taking. That's two cases. अच्छा होगा मतलब. We are taking a cricket ball and a tennis ball. Tennis ball. In second case, we are taking both are tennis ball. Both are tennis ball. Okay. This is our case one. Case one. And here we are doing what? Taking cricket ball and a tennis ball, but we are throwing them with the same speed. Same speed or velocity. Speed or velocity. But here we are doing what? Here throwing with the different speed. अभी मतलब क्या समझने को मिलेगा, मतलब अगर थ्रो किया तो in case of this one you will feel what? To stop this force, to stop this one you need more force to stop this one. Okay, क्यों? As mass is more. क्रिकेट बॉल का मास क्या ज्यादा होता है, इसीलिए मतलब इसको रोकने में हम लोगों को क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगेगा. कमिंग टू दिस वन, यहाँ पे तो मास तो क्या है, सेम ही है, बट इसको रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. मोर फोर्स टू स्टॉप. हियर भी क्या होगा? मोर फोर्स टू स्टॉप. क्यों? मास तो सेम है, बट क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज more. Clear? In case of this one, mass is more. In case of this one, velocity is more. Okay. Now, from this we can get a clear idea that to stop a moving body, the amount of force required to stop a moving body is depend on two things. Force and what? Is depend on two things. One thing is what? Our mass. Another thing is what? Our वेलोसिटी. किसी एक बॉडी अगर मोशन पे है तो उसको रोकने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है. एक मतलब what is the mass of that body and what is on which velocity it is for traveling. okay, अगर दोनों मतलब जान में तो मतलब अगर दोनों ज्यादा है तो मास फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. अगर दोनों मतलब कम है तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा. तो देयर टू स्टॉप ए मोशन मूविंग बॉडी the required force is needed to stop the body is depend on two things, force and mass and the velocity. This gives us the idea of what? Momentum. This gives us the idea about new physical quantity. It is what our momentum is nothing but the product of mass and velocity. समझ में आया होगा? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को मतलब क्या मानते हैं हम लोग? मोमेंटम. हो गया क्लियर? तो मोमेंटम we denote by what? P and mass we denote by m and velocity we denote by v. तो मोमेंटम P equal to what? mb. This is the general formula. Momentum is equal to mass into velocity. अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा what is the unit? Mass unit is what? किलोग्राम and velocity unit मीटर पर सेकंड. तो हम लोग लिख सकते हैं what is the unit? मीटर पर सेकंड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड is the unit of momentum. SI unit of momentum is kilogram meter per second. Now if a body is at rest, अगर कोई बॉडी मतलब रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा. व्हाई? बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो. अगर किसी बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? हमेशा जीरो होगा, बिकॉज उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा. समझ में आया इतना? अगर किसी बॉडी इज इन मोशन, ओके, तो उसका वेलोसिटी, उसका मोमेंटम डिपेंड करेगा मतलब उसका मास कितने और कितने वेलोसिटी पे मूविंग कर रहा है. अगर वेलोसिटी हाई है, मास भी हाई है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर वेलोसिटी भी कम है तो मास भी कम है तो मोमेंटम भी क्या होगा? कम होगा. तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. समझ में आया इतना? मोमेंटम इज ए काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. इसका डायरेक्शन भी है और इसका क्या है? मैग्नीट्यूड भी है. मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. क्लियर हो गया इतना? नाउ
मतलब मोमेंटम का प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशन होता है क्या, मतलब दिख सकते हैं क्या? हाँ, मतलब अगर बॉलर अगर बाउंसर मारे तो बैट्समैन क्या करता है, डक करता है, क्या करता है, डक करता है। मतलब क्रिकेट बॉल इज वेरी, मतलब उसका मास बहुत कम है, बट इट केम विद द हाई वेलोसिटी। उसका मास तो बहुत कम होता है, इतना छोटा सा बॉल होता है, मास बहुत कम होता है, बट इट केम वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई बैट्समैन यूज्ड टू डक। अगर किसी वजह से मतलब बाउंसर लग गए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बिकॉज इट हिट्स वेरी हार्ड, इट हिट्स वेरी हार्ड। मतलब मोमेंटम सडनली डिक्रीज होता है, मतलब आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल केम वेरी फास्ट, मतलब आफ्टर हिटिंग योर हेड व्हाट हैपेंस, मोमेंटम डिक्रीज सडनली, फॉर दैट रीजन व्हाट, बहुत ज्यादा जोर से लगता है, ओके। बिकॉज मतलब वो बॉडी मतलब आफ्टर द बॉल इज ट्रेवलिंग वेरी फास्ट, बट मास तो कम होता है, बट मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। और एथलीट हम लोगों ने देखा कि मतलब करेक्ट एथलीट यूज्ड टू डू व्हाट, दे कैन ब्रेक ए सिंगल स्लैब ऑफ व्हाट, सिंगल स्लैब ऑफ व्हाट आइस इन विद ए सिंगल टेक, ओके। हम लोगों ने देखा है, मतलब कभी क्या हो सकता है, पानी वही वाला देखा है, तो मतलब कभी कभी क्या हो सकता है, मतलब करेक्ट पीपल कैन ब्रेक ए स्लैब ऑफ व्हाट, वही वाला, हाँ वही, correct people can break a what, slab of ice with a single tick, like this, okay, like this they can break. Why? While they are doing this, they are striking the slab of ice with a very fast. As they are doing it very fast, so suddenly what is happening, with a quick time, what is happening, the momentum is decreasing, that's why it hits very hard, which is enough to break the what, slab of ice. समझ में आया होगा? As they are striking the ice slab with a very fast, so what is happening, momentum is decreasing very fast, for that reason the force is acting on the what, slab of ice is very huge, that's why मतलब वो वाला ग्लास क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ओके। समझ में आया इतना अच्छे से, मतलब देख लेना, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, व्हाई करेक्ट प्लेयर कैन ब्रेक ए स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो विद हिज हैंड, ओके। इतना आ सकता है कभी कभी। अभी देखो मतलब बास एंड कार मतलब अगर क्या होता है, इफ दे आर ट्रेवलिंग वेरी स्लो, अगर किसी को हिट किया तो बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत जोर से एक्सीडेंट होता है, इसलिए बोलते हैं मतलब इफ ए कार इज ट्रेवलिंग विद ह्यूज स्पीड, और उसका एक्सीडेंट का जो नजारा होगा बहुत दर्दनाक होता है, बिकॉज मतलब एज द कार का मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी इज आल्सो वेरी हाई, तो इफ अगर इट हिट्स ए बॉडी तो व्हाट विल हैपन, द मोमेंटम विल डिक्रीज सडनली, फॉर दैट रीजन एक्सीडेंट का नजारा बहुत खतरनाक होता है, ओके, दर्दनाक होता है। और अगर मतलब किसी में मतलब कार मतलब इफ ट्रेवलिंग इट वेरी स्लो, आल्सो इफ इट हिट्स ए बॉडी, मतलब अगर एक्सीडेंट होगा तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस सिचुएशन होता है, कंपेयर टू पहले वाला से मतलब कम होता है, बट होता है बिकॉज मास बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एज मास इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास डायरेक्टली, अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मास कम है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेलोसिटी भी सेम है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम, होप अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स सॉल्व ए न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस मोमेंटम, ओके। तो अच्छे से समझने के लिए राइट क्वेश्चन क्विकली, what is the change in momentum, 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 what is the change in momentum of a body whose mass is 10 kg. Mass is what 10 kg, 10 kg, and speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour, ओके। तो लेट्स सॉल्व। न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का मतलब समझना चाहिए अच्छे से, ओके। तो हम लोग को निकलना क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्यों चेंज है, हम लोग ने पढ़ा मतलब मोमेंटम के बारे में। चेंज इन मोमेंटम चेंज हो सकता है एज द वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी हो सकता है, तो इनिशियल एंड फाइनल, इफ वी सब्सट्रैक्ट फाइनल माइनस इनिशियल, हम लोग का क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल हियर इफ वी राइट हियर मास इज व्हाट मास m इक्वल टू कितना है हम लोग के पास, 10 kg। मास कितना है हम लोगों के पास, 10 kg है, मास कितना है, 10 kg है, एंड वेलोसिटी स्पीड इंक्रीजेस और वेलोसिटी सिंपली वी कैन राइट, ओके। तो कितना था पहले, कितना था 36, तो इनिशियल इज व्हाट, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी यार, वेलोसिटी राइट,
बेटर होएगा। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यानी टू किलोमीटर कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। डू यू हैव एन आइडिया? 5/18, 5/18, 18 to the 36, 5 to the 10 मीटर पर सेकंड। एंड फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास कितना है? फाइनल वेलोसिटी v कितना है हम लोगों के पास? 72 किलोमीटर पर आवर, 72। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है हम लोगों के पास? v इक्वल टू कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इफ यू कन्वर्ट 72 into 5 by कितना होगा? 18, 5/18। एज वी नो दैट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड वी नीड 5/18। 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन लिख लिया? तो निकलना क्या? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। therefore change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum, final momentum minus initial momentum, ओके। तो फाइनल मोमेंटम कितना है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास कितना था हम लोगों के पास? 10 kg। फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास तो कितना है? 10। फाइनल वेलोसिटी कितना है हम लोगों के पास? 20। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू मास तो कितना है? 10 ही है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितना था हम लोगों के पास? 10। 2 1 2 00, 1 1 1 00। इफ यू सब्ट्रैक्ट 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। समझ में आया होगा? फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मतलब फाइनल मोमेंटम लिख सकते हो mv माइनस mu, mv मास इनटू मास ऑफ द बॉडी इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ द बॉडी इनटू इनिशियल वेलोसिटी। यहां से मैंने किया, तो मतलब देख सकते हो। ओके, खत्म। अच्छा, ये वाला कर लेना। ओके, नंबर 2 वाला हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हो गया। नेक्स्ट वन गिविंग वन होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व। ओके, व्हाट इज द मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड? व्हाट इज द मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड if मीटर पर सेकंड ऑफ ए 10 kg of a 10 kilogram object, 10 kilogram object traveling at number 1 traveling at 5 meter per second, number 2 20 centimeter per second. You have to convert centimeter into centimeter to meter, remember this. And number C 108 किलोमीटर पर आवर। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ओके, अच्छे से समझने ट्राई करना, मतलब ओके। क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज इन मोमेंटम से। हो गया, ये वाला कर लेना घर पे, शो में। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग मोमेंटम तो अच्छे से कर लिया, तो अभी किसके बारे हम लोग का? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्लियर? तो लेट्स बिगिन। अभी हम लोगों को मतलब दो केसेस कंसीडर करना, एक ही केस कंसीडर कर लेते हैं। ओके, वी आर टेकिंग ए हेवी ऑब्जेक्ट, मास क्या ज्यादा है, एंड वी आर टेकिंग ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके, हेवी ऑब्जेक्ट एंड लाइट ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या है? से 15 kg, 15, इसका मास क्या है? 5 kg। if we strike, we are striking, what we are doing? We are striking with same force. If we are striking this two with same force, what will happen? इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। अच्छे समझना, यू आर किकिंग ए हेवी बॉल एंड ए लाइट बॉल, तो लाइट वाला बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए बहुत दूर चला जाएगा। ओके, बट हेवी वाला बॉल बहुत तोड़ा ही देते हैं। अगर स्टोन इफ यू आर थ्रोइंग, अगर जितना लाइट स्टोन होगा वो उतना ज्यादा मतलब जाएगा। ओके, क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ दिस वन, as this one is heavy, this one is much heavier than this one, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम होगा। it will attain less velocity than this one, but दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम will equal।
मोमेंटम विल इक्वल. तो वी आर स्ट्राइकिंग व्हाट फोर्स, बट क्या इक्वल आ रहा है, मोमेंटम क्या, p हियर आई एम डिनोटिंग मोमेंटम. मोमेंटम क्या इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है. द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, मोमेंटम एंड फोर्स एक्सप्लेन बाय व्हाट, न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड, समझ में आया, मतलब केस समझ में आया. फंडा मतलब क्या है, दो मतलब ऑब्जेक्ट है, दोनों एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है, बट इफ यू आर स्ट्राइकिंग विद द सेम फोर्स, तो दिस वन विल हैव लेस वेलोसिटी, बट इसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, बट दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड फोर्स इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, कैमरा ठीक ठाक है. तो what Newton explained, what Newton explained, according to Newton second law, according to Newton second law, according to बाबा न्यूटन, बाबा नहीं लिखने का, ओके, according to Newton's second law, the rate of change of change of momentum, the rate of change of momentum की रेट, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, मोमेंटम का चेंजिंग होने का रेट. नाउ मोमेंटम किसके साथ, किसकी बात, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट चेंजिंग, टाइम. मतलब पहले 2 सेकंड पहले इतना था स्पीड ज्यादा, मतलब किसी एक कार इज ट्रेवलिंग, 1 घंटा पहले इतना स्पीड वेलोसिटी था, 1 घंटा बाद इतना वेलोसिटी, बट मास तो क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो मोमेंटम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो व्हेन टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस व्हाट, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, समझ में आना चाहिए. व्हेन टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ मोमेंटम किसके साथ चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर मोमेंटम इज रिस्पेक्ट टू चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम. हो गया. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force applied. हो गया, लिख सकते हो. The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and it takes place in the direction of force. हो गया, खत्म. डायरेक्शन ऑफ फोर्स x, हो गया. According to Newton's second law, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and takes place in the direction of force x. मतलब जिस मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है वो डायरेक्टली किसके साथ प्रोपोर्शनल है, फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है. एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स टुवर्ड्स द, एज द डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग उसी डायरेक्शन पे. ओके, हो गया. तो अभी लेट्स प्रूव इट. अगर साइंस में क्या होता है, किसी चीज बोलना लो मतलब बनाना है, उसे प्रूव करना जरूरी होता है. तो लेट्स प्रूव इट. ओके, तो प्रूव करने के लिए वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है हम लोगों ने लिया m, मालूम नहीं कितना कंसीडर किया हम लोगों ने, m लिया. एंड दैट बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी व्हाट, u, इनिशियल वेलोसिटी u. आफ्टर टाइम t दैट बॉडी रीचेस द सेट पोजीशन, क्या है यहाँ पे a पोजीशन है, यहाँ के पोजीशन क्या है, b है. After time t, the body reaches the position what, b. After time t, the body reaches the position v with attained velocity what, v. Velocity कितना निकला, v निकला. एंड फोर्स कितना दिया हम लोगों ने, f दिया. और एक्सीलरेशन भी कितना हुआ, इस वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो एक्सीलरेशन की बात भी आ सकता है, लिख सकते हो. लेट ए बॉडी ऑफ मास m having an initial, let a body, we have considered a body, let a body of mass m having initial velocity u, let a body, let's prove it. Okay, let a body of mass m having initial velocity u. So initial momentum कितना होगा, initial momentum is momentum mass into velocity, तो mu. initial momentum क्या हो जाएगा हम लोगों का, mu. लिख सकते हो a body of mass m having initial velocity u, so initial momentum is what, हम लोगों का क्या हो जाएगा, mu. Okay, suppose which force is acting, f force is acting on a body
एक्टिंग ऑन बॉडी फॉर टाइम टी, फॉर टाइम टी लिख सकते हो। फॉर टाइम कितना मतलब फॉर टाइम टी फॉर which velocity changes to v, लिख सकते हो। एस बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइंग एफ, वेलोसिटी क्या हो रहा है हम लोगों के पास, यू से क्या हो रहा है, v हो रहा है, लिख सकते हो वेलोसिटी इज व्हाट v। ओके, सो द फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज क्या हो जाएगा, mv मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो किसी एक बॉडी को कंसीडर किया, इसका मास क्या है, m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा। आफ्टर टाइम t बिकॉज ऑफ फोर्स f, तो मास भी मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, m। सो द चेंज इन मोमेंटम चेंजेस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल। इफ वी टेक कॉमन m क्या हो जाएगा, mv माइनस u, सिंपल है, वी आर टेकिंग m कॉमन, तो क्या हो रहा है, mv माइनस u। ओके, हो गया। according to second law of Newton, according to Newton second law ने क्या बोला था, the rate of change of momentum according to second law of motion, better word is what, second law of motion लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मोशन ने क्या बोला, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। क्या लिखा, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब न्यूटन क्या बोला, मतलब अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल। तो rate of change of according to second law, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, so force applies directly proportional to the change of momentum by what, t, this is what, rate of change of momentum, this is change of momentum, ये वाला change of momentum with respect to time, this momentum is changing because of what, time, with respect to time, this momentum is changing with respect to time। और second law ने क्या बोला, the rate of change of momentum, try to understand, this is what, change of momentum, and this is what, if we divide change of momentum by time, we are getting rate of change of momentum, and this rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फोर्स कम हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, हम लोगों का कम हो जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन, what we can do, we can take one case, implies we can write F proportional m v minus u by t, we can write in single bracket, implies F proportional m। Now we know that change in velocity, rate of change of velocity is what, our acceleration, rate of change of velocity is what, our acceleration। तो v minus u by t अल्टीमेटली हम लोग क्या हो जाएगा, a, चैप्टर 8 में मिला था हम लोगों को, तो a इक्वल टू व्हाट, acceleration is equal to change in velocity by what, time, change in velocity by what, time, और rate of change of velocity। Similarly rate of change of velocity मतलब change in velocity by time, rate of change of momentum, change of momentum by what, time। तो यहाँ से हम लोग को मिला f इक्वल टू f प्रोपोर्शनल क्या मिला, m मिला, implies f, if we remove the proportional क्या आ जाएगा, हम लोग कांस्टेंट आ जाएगा, तो k ma where k is constant, k is a constant, you can write k is a constant, and if k equal to 1, therefore f equal to ma, this is the derivation of Newton's second law, this is the मतलब explanations of Newton's second law। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब प्रूव दैट F इक्वल टू ma, प्रूव मैथमेटिकली इन न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज द प्रूविंग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन लिख सकते हो डायरेक्टली, हो जाएगा इतना से। क्या बताता है, मतलब दिस गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड
एक्सीलरेशन का जो रिलेशन है उसको बताता है कौन, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ लिख सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ, लिखो। न्यूटन सेकंड लॉ में कौन दिया जाता है, मतलब हम लोगों का मतलब वो वाला रिलेशन देते हैं, किसका रिलेशन आता है, मतलब फोर्स एंड एक्सीलरेशन रिलेशन आता है। ओके, अगर किसी बॉडी होने वो फोर्स एक्टिंग होने बॉडी मतलब अगर ज्यादा हो गया तो मतलब एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, मतलब लिख सकते हो। अरे वी नो दैट एक्सीलरेशन कैन बी व्हाट, दिस एक्सीलरेशन कैन बी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चैप्टर 8 में मिला था हम लोग को, एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस फोर्स भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज टुवर्ड्स द दिस मतलब द वे इट इज फोर्स एक्टिंग वो सेम साइड सेम डायरेक्शन पे होगा। अगर नेगेटिव हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर जीरो है तो मतलब तो चेंजिंग वेलोसिटी, नो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एक्सीलरेशन इज डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी फोर्स जीरो आ गया दैट मींस व्हाट इज हैपनिंग हियर, चेंज ऑफ वेलोसिटी, द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑन दैट केस व्हाट हैपेंस, ऑन दैट केस if a body is in uniform motion तो उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। दैट मींस हम लोग का मतलब फास्ट लॉ में यहाँ पे आ रहा है, अगर इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड तो जो बॉडी मोशन पे वो उसी मोशन पे रहेगा, यहाँ से हम लोग फास्ट लॉ में मतलब ले सकते हैं। अगर मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अगर मतलब फोर्स एक्टिंग इज जीरो, मतलब जीरो आ गया, फोर्स एक्टिंग जीरो आ गया तो दिस t इंटू जीरो जीरो और m इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली v इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग के पास u आ जाएगा। सी दिस वन, अगर f बिकम जीरो तो क्या आ जाएगा, m v माइनस u, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो t इंटू जीरो जीरो, m v माइनस u, अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा। अल्टीमेटली v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u। इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल। अगर पूछा जाएगा मतलब हाउ वी कैन रिलेट न्यूटन फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, तो अगर फोर्स अप्लाइड इज जीरो तो m इक्वल v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। दैट मींस जो मतलब किसी बॉडी का पहले जो स्पीड था और वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया गया तो। ओके, हो गया, हाँ वही मतलब लिख सकते हो। ओके, हाँ वही हाँ। तो मतलब यहाँ से हम लोग का मतलब एक चीज तो मालूम पड़ेगा कि किसी बॉडी का अगर हम लोग का एक्सीलरेशन के बारे में जानते हैं, किसी बॉडी का अगर एक्सीलरेशन जानते हैं और मास जानते हैं तो उसका फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक बॉडी का मास अगर कितना है 10 kg, मास कितना है 10 kg और एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर है तो क्या बोल सकते हो, तो मास कितना है 10 इंटू वाट 5, 10 इंटू वाट, एंड यूनिट क्या हो जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 10 50 एंड इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। दिस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। एंड न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एंड न्यूटन कुछ भी नहीं है, मतलब वही वाला है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन लिखा जाता है। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन लिखा जाता है। ओके, लिख सकते हो जल्दी। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी कभी पूछा जाएगा मतलब व्हाट इज 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन if the mass is 1 kg, acceleration is 1 meter per second square। if the mass is, अगर किसी बॉडी का मास कितना है 1 kg है एंड एक्सीलरेशन भी कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसको फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 न्यूटन। पूछा जाता है व्हाट इज 1 न्यूटन, व्हाट इज, लिख सकते हो व्हाट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when acting on a body, लिख सकते हो which when acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration 1 meter per second square, ओके। तो मतलब यहाँ से हम न्यूटन सेकंड लॉ का क्या मिला हम लोग को, मतलब दो चीजें मिला, मतलब किसी बॉडी का मास एंड फोर्स एंड एक्सीलरेशन के बारे में रिलेशन मिला, फोर्स एंड एक्सीलरेशन रिलेशन हम लोगों को मिला। तो क्या मिला हम लोगों को, F इक्वल टू ma, यहाँ से अगर यू डिराइव A क्या हो जाएगा F बाई m। अगर F ज्यादा हो रहा है, F प्रोपोर्शनल टू A, देखो F एंड A, ओके, दिस वन इज इनवर्स 1 बाई m, तो वी कैन राइट A proportional F, A proportion 1 by m, इनवर्स प्रोपोर्शन 1 by m, ओके।
अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी बॉडी का अगर हम लोगों ने क्या किया, मास को दुगना कर दिया, मास को दुगना कर दिया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम लोगों ने मास को हाफ किया, मास को हाफ किया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द एक्सीलरेशन, मास डिक्रीजिंग, इफ यू आर डिक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। समझ में आया? इफ यू आर इंक्रीजिंग द मासेस, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, इफ यू आर डिक्रीजिंग द मासेस, एक्सीलरेशन इज व्हाट, इंक्रीजिंग। तो अगर मास को हम लोगों ने डबल किया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर एक मास को हम लोगों ने हाफ किया, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कभी पूछा जाता है यहाँ से, मतलब व्हाट हैपेंस टू दिस। ओके, तो इफ द मास ऑफ बॉडी लिख सकते हो, अगर नोट डाउन कर सकते हो, इफ द मास ऑफ बॉडी डबल, एक्सीलरेशन विल बी हाफ and the mass is half, then the acceleration will be what, double. Okay, clear? Now is there question may come like this, is there any kind of practical application of Newton second law? गाड़ी का सीट बेल्ट होता है ना, सीट बेल्ट होता है तो मतलब बेस्ड ऑन व्हाट, न्यूटन सेकंड लॉ। हम ऐसा टाइड अप होता है ना, अगर सडनली इफ you are traveling with a good speed, if you suddenly push brake, what will happen? सडनली मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम विल डिक्रीज, मोमेंटम सडनली जीरो होना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन यू विल गो लाइक दिस वेरी फास्ट, सामने आ जाओगे। ओके, सामने मतलब बहुत जल्दी से, मतलब मोमेंटम सडनली बिकमिंग जीरो, तुम सामने आ जाओगे। एंड दैट्स व्हाई दिस सीट बेल्ट इज यूज्ड। तो दैट क्या हो जाएगा, बिकॉज सीट बेल्ट हैव ए स्ट्रेचिंग नेचर, तो थोड़ा टाइम मतलब लगेगा बस सामने आने के लिए। फॉर दैट रीजन मोमेंटम स्लोली क्या हो, जीरो हो जाता है। एक्सीडेंट का चांसेस क्या हो जाता है, कम होता है, और इंजुरी के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होता है। बिकॉज अगर सडनली मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, बिकमिंग जीरो, तो बहुत ज्यादा हिट, जोर से हिट होगा। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग व्हाट, सीट बेल्ट एज द सीट बेल्ट हैव स्ट्रेचिंग नेचर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एज द मोमेंटम इज डिक्रीजिंग स्लोली, मोमेंटम स्लोली डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई मतलब अगर हिट भी होगा मतलब तो इंजुरी होने का चांसेस क्या है, कम है। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी क्या है, कम है। दैट्स द रीजन व्हाई सीट बेल्ट आर यूज्ड इन द व्हीकल्स। ओके, इन एवरी केसेस, एंड दिस इज अ वेरी गुड हैबिट आल्सो। तो व्हाइल यू इफ यू आर इन कार, तो ट्राई टू यूज सीट बेल्ट। ओके, और अभी तो मतलब पानी मतलब ट्रैफिक मतलब पकड़ लिया तो फाइन भी देना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, और हम लोगों ने अगर क्रिकेट खेल में देखा हुआ, मतलब आफ्टर कैच मतलब अगर जोर से अगर कैच लगना चाहते हैं तो मतलब क्या होता है, बॉल बाउंस बैक, बॉल मतलब पकड़ नहीं सकता। अगर हम लोगों ने मतलब अचानक से मतलब ट्राई किया तो आप कैच पकड़ नहीं सकते। बट व्हाट डू यू डू आफ्टर कैचिंग, व्हाट हैपेंस, हम लोग हाथ को मतलब ऐसे नीचे लाते हैं। व्हाई यू आर डूइंग व्हाट, as the ball is what after reaching your hand, you are taking it slowly down. What you are doing, you are just टाइम को क्या कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा बढ़ा, टाइम को थोड़ा बढ़ा रहे हो, सो दैट व्हाट, मतलब मोमेंटम सडन स्लोली क्या होता है, डिक्रीज मोमेंटम, यू आर ड्रॉपिंग योर हैंड स्लोली। दैट्स व्हाई व्हाट यू आर डूइंग, यू आर just increasing the time, so that what happens, momentum decrease what, slowly, okay. These are the practical applications of Newton second law, मतलब हम लोग यूज करते। और हम लोग हाई जंप में भी देखा है। मतलब अगर हाई जंप एथलीट वाला क्या करते हैं, मतलब दे जंप एंड दे रीच लैंड है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, सैंड, क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पे, सैंड रखते हैं। तो इफ दे आर रीचिंग, इफ दे आर जंपिंग ऑन ए प्लेन फील्ड, व्हाट विल हैपन, मोमेंटम विल डिक्रीज सडनली, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट बिकॉज ऑफ सैंड व्हाट इज हैपनिंग, दे आर स्लाइडिंग, मतलब टाइम क्या और थोड़ा बढ़ रहा है, तो मोमेंटम इज डिक्रीजिंग स्लोली। दैट्स द रीजन व्हाई सैंड इज यूज्ड। ओके, ऑन jumping cases. Okay, high jump के these are the practical applications of Newton's second law. अभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है ऑन द बेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है, मतलब लिख सकते हो, एक क्वेश्चन कर लेते, चलो न्यूमेरिकल से जल्दी। what force needed to produce an acceleration, what force needed to produce acceleration of 4 meter per second square ball of mass 4 kg, मास कितना है हम लोग के पास, 4 kg है। मास कितना है, 4 kg। तो हियर एक्सीलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कितना है 4 kg, निकलना क्या, f इक्वल टू व्हाट, ma, तो 4 into 4 4 जा 16, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। हो गया, आसानी से कर सकते ये वाला। एंड ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर। ओके, घर पे जाके मतलब ट्राई कर लेना 2 3 4। ओके, और अगर मतलब नेक्स्ट डे मतलब आई विल आल्सो
Next day I will also try to solve few more question from this Newton second law. After that we'll start Newton third law. Okay, होप अच्छा लगेगा एंड मतलब अच्छे से देखना, मतलब इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब 2-3 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है वो प्रूव दैट F इक्वल टू ma और व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, फाइंड आउट मोमेंटम इन चेंजेस इन मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन पूछा जाता है, ट्राई टू एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ पूछा जाता है एग्जाम में, तो अच्छे से देखना, होप अच्छा लगेगा एंड बाय बाय, कल देखा होगा।